Hi, and a big welcome to all the present guests and our distinguished colleagues and our honorable speaker. As we all have gathered here today, I'm thrilled to share the common purpose and goal which has brought us all here today. Purpose of maybe celebrating the eminent summit meeting and learn something new and be inspired, or simply to connect with each other. I, Architect Nikita Joshi, on behalf of AMA, welcome you all here for an enriching interactive session. And with us today is a renowned personality who all of us already know and doesn't really need any sort of an introduction, and her name says it all. But yet to define her, and we may undoubtedly just say that she's born for radio, a personality known best for her work as a radio jockey with 94.3 My FM Ahmedabad and Big 92.7 FM. Yes, I'm talking about RJ Archana Jani, who is an entrepreneur and a media personality hailing from Ahmednagar, Gujarat, and residing in Mumbai, and to and fro, who's residing in Ahmedabad as well. Archana began her career in 2002 and has also worked with Radio Mirchi and OAFM. She gained further recognition as a host on ZTV's Saregamapa Mega Challenge and continues to appear in various Hindi TV shows. In addition to her media career, she is involved in social media and has hosted the 94.3 My FM Archanani Garjana show in South Africa. Known for her sweet voice, Archana is also an aspiring TV actress. Probably the first radio jockey in the city of Ahmedabad, which changed the mornings forever. When she decided to move to Mumbai, the entire city quite missed her badly and as if stopped listening to the radio. She marked her presence in Mumbai not only on radio but on television also, with a Bollywood show on UTV Stars. Then she moved on to Dubai, and to experience radio jockeying at an international level, it's been about 20 plus years in this industry to her. The city of Ahmedabad welcomed her back in a grand way, and she's again the voice of Ahmedabad, awarded the best RJ of the year. Apart from her day-to-day fight on various issues like hit and run, traffic sense, and cleanliness, Archana is passionately associated with the students at Blind People's Association. She is popularly on the internet space for her storytelling, which is so inspiring that it goes viral both on Facebook, Instagram, and as well as on WhatsApp. Now, talking about a brief on the struggles when she started as an RJ. There never was a road carved or a profession defined as a radio jockey. So getting acceptance as a job or profession was a small challenge. Apart from this, her moving from Ahmedabad to Mumbai to Dubai and coming back to Ahmedabad always demanded a lot of city affiliation, which she did with very ease as a radio jockey and also as a host for glam high-profile events. How did she get here as the favorite RJs and became the host of the audience, as there was no other RJ or anchor when she started? She was the pioneer and set the example for the rest of the lot. People believed what she said. People did not hear her but listened to her. She believes that radio is like a mirror and one cannot pretend. You have to be yourself or you're just caught. Where she aims to be in the future, she's always been a morning RJ and the most loved host with her intelligence and energy levels with the internet space. Sky is the limit, and she's a successful social media influencer as well and would like to die with her shoes on. So may we have Archana on the stage. Is that a gift I'm taking her back home?
थैंक यू सो मच. व्हाट अ लवली एंड अ वार्म वेलकम. अनेक अनेक धन्यवाद आपने जो मेरे लिए कहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. एंड आई होप मेरे लिए जो कहा है उसका मैं 10% भी कर पाऊँ. आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड किसकी बात चल रही है. ओके काफ़ी कुछ अच्छा कह दिया मेरे लिए. थैंक यू सो मच. काइंडली हैव अ सीट. एंड ओह लवली. थैंक यू. This is the bamboo speaker. I really love it. Thank you. So to begin with, sir, thank you. आपने मुझे दोपहर में बुलाया. मतलब खाना खाने के बाद यूजुअली लोग थोड़े से नींद में रहते हैं. अभी चाय का टाइम हो गया है. So everybody is up and awake. Yeah, good. गुजराती हो तो छिए जापड़े. पर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा में बात करेंगे तो सही रहेगा. हाँ, सारे लोग समझ पाएंगे. Is that good? Comfortable? Okay, so do we have communication students here? How many of you? Great, so that I can just get a... And the others? कितने engineer हैं यहाँ पर? Oh, quite a few. बहुत बढ़िया. आजकल reels देखने के बाद engineering वालों को लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं. है ना? देखिए मेरा जो introduction हुआ है उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि virtual दुनिया में पिछले दिनों जो हुआ है सर, उसके बाद अपने आप को इन्फ्लुएंसर या पॉडकास्टर कहने से लोग डरते हैं. ठीक है. सो रेडियो पे हम जैसे ऑटोग्राफ देते हैं. आई लाइक कॉलिंग इट ऑटोग्राफ. सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल. केम छो सारू छे. अमदावाद ज नहीं विश्वा खोई मारू छे. अर्चना तरफથી जय श्री कृष्ण. वेलकम एंड लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू. सो दिस इज हाउ आई बिगिन माई मॉर्निंग. एंड मुझे नहीं पता था दिस विल बिकम माई ब्रांड स्टेटमेंट, ब्रांड लाइन, या सर जो भी आपने सिखाया था सब गायब हो गया है. कभी मैंने भी यहाँ पे EMA में पढ़ाई की थी. सो ब्रांडिंग तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग जब बताते तब पता चलता है कि अर्चना दिस इज़ वॉट यू स्टैंड फॉर. मज़ा आता है लोगों को सुन के. सो दिस इज एक्सीडेंटल ब्रांडिंग ऑफ योर्स विच हैपन्स एट टाइम्स एंड इट वर्क्स फॉर यू. गुड. सो मैं कहीं कहीं ब्रांडिंग की बात करूँगी जहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है. बाकी आप लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. सो RJ टू इन्फ्लुएंसर जर्नी, ये मेरा टॉपिक है. और मैं अपने आप को RJ कहलवाना ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि आजकल एक पत्थर उछाल दीजिए, 3-4 इन्फ्लुएंसर के सर फूटेंगे और वो #ouch करके उसको ट्वीट भी कर देंगे. ठीक है. सो इट इज़ बेटर टू कॉल माई सेल्फ अ रेडियो जॉकी एंड देन एन इन्फ्लुएंसर. मतलब 12-15 साल के आजकल बच्चे जिनका होमवर्क का ठिकाना नहीं है, उनकी माँ जो है वो क्लास वर्क इनकम्प्लीट होता है उसका जुगाड़ कर रही होती है और वो 1500 फॉलोअर्स लेके घूम रहे होते हैं. थैंक्स टू आवर इंडियन पॉपुलेशन जिनको स्क्रोल करने की आदत है. सो बाय द वे, टॉकिंग अबाउट स्क्रोलिंग, सो आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी. बट आजकल के जो रेडियो जॉकीज़ हैं ना, जब वो आते हैं तो हमारा काम ये होता था कि हम, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हम न्यूज़पेपर को चाट लिया करते थे पूरी तरह से. जितने भी पेपर्स होते थे, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश. एक नया रेडियो जॉकी आया सीधा कॉलेज से, फ्रेशर. उसको मैंने न्यूज़पेपर दिया, वो उसको स्क्रोल करने की कोशिश कर रहा है. मैंने कहा भैया पलट ले और पढ़ ले, इसको न्यूज़पेपर कहते हो. लाइक दैट. So, influencer journey. I have a few pointers to talk about so that I don't miss. I think it was COVID जब मेरी influencer journey बिल्कुल सही से शुरू हुई थी. COVID से बहुत पहले 2014 में जब मोदी जी गुजरात से दिल्ली गए और मैं दुबई से वापस गुजरात आई. मतलब D to G, G to D हम लोग का हो गया. वैसे मोदी जी चले गए, मैं आ गई वापस दुबई से. तो उस समय पे इंटरनेट और सोशल मीडिया हमको ज़ोर से हिट किया था. और उससे पहले मैं रेडियो पे कहानियाँ किया करती थी. मुझे नहीं पता था कि मेरी कहानियाँ मतलब इतनी इफेक्टिव होंगी, बिकॉज इट्स वी आर ऑल नथिंग बट स्टोरीज. आप क्या हैं? एक कहानी, राइट? सो कहानियाँ लोगों को इतनी पसंद आती थी कि रेडियो पे से वो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डाला करते थे. मुझे अभी तक याद है, मेरा एक लिसनर है, वो LIC की पॉलिसी बेचता है और रोज़ सुबह क्या करता था, मेरी स्टोरी को मतलब रिकॉर्ड करता था और भेजता था और पूरे ग्रुप में ब्रॉडकास्ट कर देगा और बोलेगा पॉलिसी की ज़रूरत हो तो बताना. मैंने कहा सही है यार, मेरी दुकान से तेरा काम चल रहा है. बट वो मुझे आके दिखाता तो मुझे पसंद आता था कि यार somebody is taking it so seriously. आई रिमेंबर कोर मोबाइल सर, कोर मोबाइल के जो ओनर हैं वो बताते थे कि अर्चना जब तक तुम्हारी स्टोरी मैं भेजता नहीं हूँ, मेरे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में मतलब इतने इतने लोग रहते हैं, उनको जब मैं नहीं भेजता हूँ तो वो बोलते हैं आज की कहानी कहाँ है. मैं कहा बढ़िया है. सो एक बार ऐसे ही मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के डाल दिया जाए. दिस इज़ वे बिफोर कोविड, 2014. 2016 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोज़ एंड बूम, मुझे पता भी नहीं था. मतलब मैंने मेरे फेसबुक पेज पे
वीडियो डालना शुरू किया कहानियों का, एंड इट जस्ट ग्रू लाइक क्रेजी, इट वेंट इनटू मिलियंस। मतलब अभी मैंने रखा नहीं और 15 मिनट में 1 लाख, 5 लाख, और फिर तो ऐसी दादागिरी मेरे साथ हुई है, मैं क्या बताऊं यार। मेरी ज़िंदगी मतलब उन लोगों ने वाट लगा दी। थर्सडे शाम को 7 बजे अगर मैं स्टोरी ना रखूं तो मैसेजेस की भरमार आ जाती थी कि कहाँ है स्टोरी। मैंने बोला क्यों भाई, आज की रोटी तूने खिलाई थी क्या? और या तो फिर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती थी, बहुत मज़ा आता था। सच कहूँ तो मेरा खून बढ़ जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है कि मैसेज आता था, मैं कुछ गलत करने जा रहा था, मैं रुक गया, थैंक्स फॉर योर स्टोरी। किसी ने लिखा मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा था, मुझे नई राह दिखा दी। आई वॉज लाइक इट इज सो इफेक्टिव। मैं बीच में दुबई टूरिज्म के लिए, क्योंकि मैं दुबई में रेडियो करती थी और मतलब उनको लगा कहीं ना कहीं मेरा इन्फ्लुएंसर जैसा कुछ होगा रोल, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे दुबई में गोल्ड सूक में, मतलब जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर आरजे अर्चना। मैंने बोला सही है भाई, ओके डन। तो कहानियों का ये इफेक्ट था, जो मैं कहानी बहुत दिल से कहती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ, आप में से जिस किसी ने सुनी हो, मतलब कोई बनावट नहीं है, जो फील होता है वो दिल से बोल दिया, लेकिन वो इफेक्ट कर गया। मैंने कहा बढ़िया। लेकिन फिर कोविड आया, और कोविड में मतलब मैं बता रही हूँ, कोविड वायरस मर गया लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैदा कर गया। वो बरसात के बाद जो मशरूमिंग होता है ना, बिल्कुल वैसे मशरूम की तरह इतने सारे स्टोरी टेलर पैदा हो गए। वो सारे कहानियाँ कहने लग गए। मैंने कहा मेरे को बंद करना पड़ेगा तो मैंने स्टोरीज थोड़ी सी कम कर दी, बिकॉज आई कुड सी दैट सो मेनी पीपल, अब इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो यार दुनिया सहन नहीं कर पाएगी ना। तो मैंने कहा अपना थोड़ा कम कर देते हैं। जो लोग स्टोरीज नहीं बोल पाते थे वो एक दूसरे से कहा करते थे, बोलते थे यार मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बनना है, मैं क्या करूँ? तो दोस्त कहता था यार तेरे को पानी पूरी खाना आता है? तो बोले हैं। तेरे आसपास कोई फेमस समोसे वाला है? हाँ। वो कचौड़ी वाला है, उसको तोड़ के वहाँ पे मतलब चटनी डालते हुए वीडियो बना दे, डाल दे। सो रील के नाम पे एक दूसरे को जो ढील दिए ना लोगों ने, उसकी वजह से इन्फ्लुएंसर ये जो शब्द है, इसकी जगह पे आई वुड जस्ट लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रेडियो जॉकी। बट यार नेवरदलेस, नॉट डिमीनिंग, मजाक सही है, मजाक। कितने इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर? सारे हाथ उठाइए। ऑल ऑफ अस आर इन्फ्लुएंसर्स, राइट? कहीं ना कहीं किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका दोस्त आपसे पूछ के नहीं खरीदता, कहो मोबाइल ले लो, बोल तू एप्पल लोगे, आ लो, पुचिन करा दे ना, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर फॉर हिम, राइट? आई थिंक जिस किसी पे विश्वास कर पाए वो एक इन्फ्लुएंसर होता है। मुझे ये भी लगता है कि कुछ हद तक हम जिस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में हैं, कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मतलब एक बच्चा अपने पिताजी के बारे में एक ऐसे पढ़ रहा था क्लास में, उसने 2 लाइन में कहा कि मेरे पिताजी महान है, वो बहुत सारे लोगों की जान बचाते हैं। उससे पूछा गया क्यों भाई, डॉक्टर हैं, फायर फाइटर हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल स्पीकर है। उतनी देर थी, पिताजी तो मतलब वीडियो कैमरा लाइव लेके अंदर ही घुसा है, देखिए मेरा बेटा मेरे बारे में बोल रहा है, थम्स अप दीजिए, थम्स डाउन दीजिए, आपको कैसा लगा? अरे जीने दो यार। सारी चीज़ें मतलब करवाना क्यों है? स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, फोटो खींच के डालो। भाई आपकी पर्सनल लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ ही रखिए। आई वुड लाइक टू से आई डू नॉट पुट माई पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट। नो मम्माज डे, नो पप्पाज डे, मैंने शायद बाय मिस्टेक भी कभी किया हो। एवरीथिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मेरी नई गाड़ी, मेरा नया घर, क्या मतलब? सो आई थिंक इतना तो होना चाहिए। आप कुछ करना चाहते हो। वो एक समय काल था जब इन्फ्लुएंसर्स रियल हुआ करते। वीर शहीद भगत सिंह, हाँ, वो थे इन्फ्लुएंसर। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहीं नहीं था कि कहीं पे कुछ रख के वो चले गए। मतलब जो उन्होंने कहा वो अपने आप ही वायरल हो जाया करता उस समय काल में जब सोशल मीडिया नहीं था। तो लोगों के दिमाग और विचारधारा चेंज करने का काम करते थे। आज के इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? दिन में 10 कपड़े चेंज करते हैं, वो भी ऐसे। अरे ऐसे क्या कपड़े चेंज हो गए भाई? मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने पैर में कुछ टकने में दर्द होने लग गया, मैंने बोला साइड में रखो, अपने से ये नहीं होगा। आई वुड also here mention, and I've made few pointers so that I don't miss, यार कंट्रोवर्सी आई नहीं, कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया नहीं, और बंदा अपने नाइट ड्रेस में से आया नहीं, रजाई में से बाहर नहीं, चलो लाइव। मतलब वो फोमो फीलिंग है यार। इस कंट्रोवर्सी पे मैंने बात नहीं की, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया में मतलब मेरा थॉट
बहुत ज़रूरी है भाई, उसके बारे में कुछ सोच ले। हाँ, आई वुड लाइक टू से दैट हर कंट्रोवर्सी पे या हर हैपनिंग चीज़ पे मेरा भी वीडियो जाता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी थॉट प्रोसेस होती है. It takes a lot of time. We'll talk about, you know, what I go through, the making of, you know, my video or making of my content, my style, which is getting views. सच बताऊँ तो views से मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं है. मेरे को उस पर कमाई हुई नहीं हुई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. Trust me when I say that. Sorry, आप अपने हैं इसलिए बता दूँ, I earn way more rather than doing this. I won't do this. There are other ways of earning, and most of you will do that someday or the other. Most of you are doing this. But that satisfaction of putting across your thought, that these many people heard it, they liked it, they disliked it or whatever, जो real feeling, जो समझ में आती है कि लिखने के लिए वास्ते नहीं लिखा है, वो मज़ेदार है. That satisfaction is different. I would also say there are levels of, all of us know, there are these celebrity influencers, फिर होते हैं macro, फिर होते हैं माइक्रो, और अब आए हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स. 1000 से लेके 10,000 फॉलोअर जिसके हैं वो नैनो इन्फ्लुएंसर्स, राइट. बट एवरीबडी इज नैनो एट वन पॉइंट इन टाइम. कहीं कभी ना कभी आप शुरुआत करोगे आप बिल्कुल वैसे होंगे, बट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, दैट इज द पॉइंट. बट इसकी वजह से हुआ क्या है, दीज लेवल्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, नोबडी इज एन इन्फ्लुएंसर नाउ. यू नो व्हाट वर्क्स? कंटेंट. तेरे कंटेंट में दम है, चल जाएगा. कितने बजे रखो चलेगा, अरे कितने भी बजे रख, दम है चल जाएगा. दिस इज माई फाइंडिंग, माई जर्नी फ्रॉम रेडियो टू एन इन्फ्लुएंसर और वॉट एवर यू कॉल इट. बट इफ दम है चलेगा. समय का, हैशटैग का, इसका उसका कोई मतलब नहीं है. वो सारा थोड़ा बहुत है, उल्लू बनाने के काम है. लोग इसके ऊपर भी मतलब रील्स बना देते हैं. अरे इतने बजे नहीं डाला ना इस वजह से हुआ, अरे वो हैशटैग नहीं डाला ना तूने इसलिए हुआ, अरे दम नहीं था इसलिए नहीं हुआ. Right. So journey, talking about my journey, भारत में FM का जन्म हुआ, साथ ही रेडियो जॉकी अर्चना जानी का भी जन्म हुआ था. I have seen all phases of radio. I've been lucky enough. I've been part of every phase of radio, which was the best. And radio जब राजा था, उस समय पे भी, again कहती हूँ not showing off, but मैंने राज किया है. मतलब people used to listen to me, be it my teacher, be it my professor, be it, you know, सरकारी इंसान, तरकारी इंसान, जो भी है सब सुनते थे. रेडियो was it. और नहीं बदला तो तब से लेके अब तक अहमदाबाद नहीं बदला, क्योंकि तब जब जहाँ पर रास्ता नहीं था वहाँ पे रास्ता बन गया है, लेकिन जहाँ पे रास्ता है पता नहीं क्यों वो लोग खोदते रहते हैं. नहीं रखना है रास्ता, पता नहीं खोदते खोदते ना किसी को कुछ गिर जाता होगा, फिर उनको याद आता होगा अरे रास्ता तो बना दिया लेकिन इसकी सोने की चेन अंदर गिरी हुई है, तो खोद देते हैं वापस से. सो तब से लेके अब तक माय फेवरेट टॉपिक, पॉट होल्स पे बहुत रेडियो शोज़ किए मैंने, तो वहाँ जाए बिना, AMC को याद करे बिना मैं रह नहीं सकती, बिकॉज मेरे सक्सेस में कहीं ना कहीं AMC का बहुत बड़ा हाथ है. हाँ, તમને બધાને ગમે છે અમદાવાદના રસ્તા? हाँ, हंसते हंसते कट जाए रास्ते. बढ़िया. I moved from Ahmedabad to Mumbai to Dubai, like it was briefly shared by my friend, and family के लिए मैं वापस आ गई. बहुत सारे लोग पूछते हैं यार दुबई से अहमदाबाद कौन आता है, मैं आती हूँ. So I believe after you do all of this, the most important thing that you ask yourself is this all worth it? And what is more important? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ये सोच के बैठ जाओ, कर लो, सब अचीव कर लो, बट एक टाइम ऐसा आता है, इसी वजह से 27 साल 29 साल की उम्र में बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल दे आर ऑल्सो टेकिंग रिटायरमेंट. अरे हमारा तो मैं शुरुआत करी, तू रिटायर थी क्या? सो इट हैपन्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे अंडरस्टैंड, एंड इट्स अ जर्नी. ऑल्सो आई फील सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर जर्नी, वॉट एवर, यू बीइंग अ ब्रांड, ये सारी चीज़ें आर लाइक फिंगरप्रिंट्स. एवरीथिंग इज डिफरेंट. वी वर जस्ट टॉकिंग बिफोर माई सेशन दैट हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, किसी का जर्नी सेम नहीं हो सकता है. आपने जो सोचा है वो कभी हिट नहीं होगा, आपने नहीं सोचा होगा वो चीज़ ऐसी हिट हो जाएगी. सो करते रहो, राइट. सो सोशल मीडिया, इस पर हिट होने के मेरे पास चांसेस ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि मैं ऑलरेडी रेडियो कर रही थी. मेरे पास एक फॉर्मेट था विच वॉज माई स्टोरीज ऑन रेडियो, ऑन व्हाट्सएप. उन्हीं लोगों को जा रही थी जो लोग सोशल मीडिया देखने वाले थे. मुझे पता था कि ये ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रही है. माध्यम चेंज हो रहा है, इंसान वही रह रहा है, चाहे वो देखे चाहे वो सुने. सुनने तो वाला ही है, बट अब देखने भी वाला है.
ठीक है. सो आपको सोशल मीडिया पर दिखने के लिए 2 आंखें, 1 नाक और 2 कान और 1 मुंह, यही चाहिए. उसके अलावा आपके पास आपका मोबाइल होता ही है. डेटा तो भर भर के है घर पे, ठीक है, और इंडिया में सबसे सस्ता है. स्पेस होनी चाहिए जिसमें फालतू की फोटोग्राफ्स ना हो, तो आप भी बन सकते हो इन्फ्लुएंसर. आई एम टॉकिंग टू यू गाइज बिकॉज आई एम शेयरिंग माई जर्नी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी एस्पायरिंग टू बी वन, और ऑलरेडी आप सक्सेसफुल होंगे ही, आई एम श्योर. टॉकिंग अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग, आई वुड जस्ट से कंसिस्टेंट रहो. आज डाला कल मूड नहीं है यार, छोड़ो, नहीं हो पाएगा. इफ यू आर डूइंग दैट डे इन डे आउट, डेफिनेटली इट विल वर्क. बट आपको छोड़ना नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ दे यार, नहीं करना है. ब्रांडिंग आप सोचोगे भी नहीं, उससे पहले लोगों को पसंद आएगा, आपका ब्रांडिंग वही कर देंगे, आप सोचोगे उससे पहले. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट ब्रांडेड एज अ मोटिवेशनल स्टोरी टेलर. आई लाइक इट, बट नॉट ओनली दैट. मैंने अहमदाबाद आखू मारू है वो जब कहना शुरू किया था रेडियो पे, मैंने वही चीज़ सोशल मीडिया पे चला दी. यू वोंट बिलीव, देयर वर पीपल राइटिंग टू मी, दिल्ली आखू मारू है, नागपुर आखू मारू है. आई वाज लाइक वाओ, ये वायरल हो गया, हिट हो गया. देन लाइक आई टोल्ड यू, बरसाती मेंढकों की तरह बहुत सारे लोग स्टोरी टेलर्स आ गए, मैंने स्टोरीज कम कर दी. नाउ एज अ फैन ऑफ क्रिकेट, नॉट एज एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, but as a cricket fan, I put up my stories, I put up my reels, and as an Indian cricket fan, it is loved by people. मुझे नहीं पता था कि मैं I can be a commentator at least on social media. मेरे रिव्यूज़ का वेट करते हैं लोग कि यार ये पिक्चर देखने जाऊँ नहीं जाऊँ. So there are 2 things that I mean except for my stories that I do, which I've reduced now. But cricket and Bollywood is something that I do. So वो रिव्यू के लिए वेट करते हैं and I try to be honest क्योंकि I don't indulge into any monies in that. ब्रांडिंग से हटोगे तो फंसोगे. ये पिछले दिनों जो भी हुआ, विदाउट टेकिंग द नेम, अगर आप कुछ भी अलग करने जा रहे हो तो उसका रिस्क आप गेज करके फिर ही उसमें आगे बढ़िएगा. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग ड्रास्टिक, चलिए ये करके देख लेते हैं, शॉक वैल्यू, मतलब शॉक लगेगा लेकिन किसको, तुमको या उसको. आग लग जाएगी पर कहाँ लगेगी, तुम्हारे नीचे. सो please be very very careful as far as social media is concerned, right? So शुरुआत में ऑडियो मीडियम होता था, मेरे लिए इतना ही था कि I had to just shift and jump on to something which was video, and staying real in the digital presence is very very important. आप किसी को देख के आ रहे ये मस्त है, हाँ ये अपने भी शुरू करते हैं, ऐसा स्ट्रेट फेस रखने का, हंसने का नहीं, वर्क करेगा, पर वो तुम नहीं हो ना, जो तुम हो वो रहो. मैं ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करती हूँ, लेकिन तुमको जब प्रॉब्लम है तुमको समझ में ही नहीं आता है, तो वाई आर यू ट्राइंग टू डू समथिंग एंड एप समवन, राइट? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिनके पास भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू मेक अ नोट, आपका बायो, उसमें डेफिनेटली मेंशन योर नीश. बिकॉज जब भी ब्रांड्स ढूंढती हैं तो वो नीश, चाहे आप यू नो ब्यूटी में हो, वेलनेस में हो, होलिस्टिक, व्हाटएवर, वो हमेशा सर्च करते हैं. तो आपके बायो में वो एक चेंज करिएगा. आपका ईमेल एड्रेस, मोस्ट ऑफ द पीपल अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो कभी सर्च ही नहीं हो पाते क्योंकि कैसे कांटेक्ट करना हमको पता नहीं. मैसेज आके पड़ा है, यू हैव नेवर सीन दैट मैसेज, या द डीएम, यू हैव इग्नोर्ड दैट. सो काइंडली पुट इन योर ईमेल एड्रेस देयर. पोस्ट व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है तो उसको पोस्ट करो. नहीं आज मेरे को फितूर आया कुछ कॉमेडी करने की है क्योंकि मेरे दोस्त ने की. नो, work smart, not only hard. I think most of us, what I do is I make a content and I put it on all my platforms because हाँ उसके जो भी rules regulations हैं उसको ध्यान में रखते हुए I try to put that not only for one medium, format and change and put it on all the platforms which is possible. Nano influences again, if I'm talking to those 1000 से लेके 10,000, आपके लिए important ये भी है कि सबसे पहले पैसा नहीं आएगा, हो सकता है फ्रीबीज आए, उसमें भी मज़ा आएगा. और धीरे से जब आपको देखेंगे वो लोग तो बोलेंगे अरे ये हमारे भी उसमें फिट इन करता है, दे विल स्टार्ट पेइंग यू ऑल्सो. इट स्टार्ट स्लोली बट इट डज. सो टॉकिंग अबाउट बिजनेस, इंस्टाग्राम जो बिजनेस करता है, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं इंस्टाग्राम पर, राइट? वी नो दैट 7 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें से ऑलमोस्ट 5 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट? एंड द इन्फ्लुएंसर्स आर, यहाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मैं पढ़ रही थी तो और बाहर है वो तो. और 25% हर साल बढ़ रहा है ये नंबर, 25% एज वी, जैसे मुझे को लगता है इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? बट वैसे ही है.
और विश्वास जीतने के लिए ब्रांड्स आपका उपयोग करती हैं. मतलब ऑल ऑफ अस, वेदर वी बिलीव और नॉट, ये जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो हो गए छोटे छोटे ब्रांड एम्बेसडर्स. सो विश्वास जीतने का काम है. मैंने पहले भी कहा बिल्कुल वैसे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपके जो भी आप बना रहे हो उसमें दम होना चाहिए. यूएसपी, इंटरेस्ट जिसमें है वही काम करो बॉस, क्योंकि वो ये कर रहा है इसलिए मैं ये कर लूँ. नो, आपका इंटरेस्ट किस में है? आपको इंटरेस्ट है, आप सीए हो, तो भैया आप मतलब निर्मला सीतारमन जी बोल के उतरती है, किसी को कख समझ नहीं आता, आप समझाओ ना. ठीक है. सो stick to something which is your interest and your knowledge department. YouTube, Instagram, Facebook, आप जिस किसी पे जा रहे हो, स्क्रिप्ट मैटर करती है. एंड दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आप शॉर्ट उसके लिए जा रहे हो, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फॉर्मेट के लिए जा रहे हो, रील करके स्क्रोल करने वाला है वो सिर्फ आपको. सो उसमें आप प्रॉब्लम एरिया पकड़ो और आप सोल्यूशन दिखाइए. ओनली 2 points, प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, दैट्स इट. But if you are going in long format, this is what I'm doing. I have picked up your interest point. If you are listening to me and you are not sleeping, which means कि मैंने आपका interest point पकड़ लिया है, right? So you catch one interest point that हाँ ये लोगों को, अरे क्योंकि मुझे इस चीज़ को वायरल करवाना है. भाई तेरे मन की थोड़ी ना लोग सर्च करने बैठेंगे. तो ये बोल what interests people. Edit. I make my own videos. There is no team for me. I am my team. आँखों की जो प्रॉब्लम है वो चश्मे वश्मे आ जाएंगे थोड़े से, लेकिन एडिट खुद कीजिए, बिकॉज आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लोगों के लिए वर्क करती है. एडिट ऑन योर ओन. देयर आर वेरी वेरी सिंपल ऐप्स, यू नो, कैनवा हो सकता है. उसके अलावा देयर इज़ अ सिंपलेस्ट वन विच आई यूज़ ऑन माई मोबाइल विच इज़ InShot. मैं जब मेरा रेडियो शो कर रही हूँ, साथ साथ में आई एम ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो, या, एंड आई जस्ट अपलोड इट. सो यू कुड डू दैट. एंड ब्रांड्स जो हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट यू आर डूइंग. सो प्लीज़ आप अपने आप को अगर सर्च करवाने के काबिल रखें तो आपका बायो विल स्पीक ऑल अबाउट इट, राइट? पीपल, आई होप आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. ओके, सो इफ एनी वन ऑफ यू इज एस्पायरिंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, कितने लोग अब हाथ उठाइए? अरे सब कर सकते हैं भाई. बस 2 को इन्फ्लुएंसर, 3 को बनना है, बाकी सारे रील स्क्रॉल करेंगे. 4, हिम्मत दिखाओ, चलो. 5, 6, नहीं बढ़ रहा, चलो. ओके, गुड दैट इफ यू रियलाइज कि यार मेरे से नहीं होगा ये. द बेस्ट इज जब लोगों को रियलाइज हो जाए मेरे से नहीं होगा ये, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. मोस्ट ऑफ द पीपल दे क्रैश लैंड. भाई अपने आप से तो पूछ ले, तू है या नहीं है? क्यों अपनी जान लेने पे तुला हुआ है? अगर सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? ठीक है. रेडियो टू इन्फ्लुएंसर, इट वॉज अ स्मूथ ट्रांजिशन फॉर मी, बिकॉज ऑडियो से वीडियो जाना था, बेस वॉज ऑलरेडी रेडी, टाइम टेस्टेड था, मेरे लिए वर्क कर रहा था. फ्लड लाइक सिचुएशन, आई वुड लाइक टू से, कठवाड़ा में फ्लड लाइक सिचुएशन थी, और वहाँ से मैंने बोट में बैठ के लाइव किया है उन लोगों के साथ जिन लोगों के घर पूरी तरह से बह गए थे. सोना चांदी जो कुछ भी था, एवरीथिंग वॉज गॉन. ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, उनका फर्स्ट फ्लोर तक घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था. When I was doing that, AMC को तब जाके पता चला, अरे भैया इतनी बड़ी सिचुएशन है. उन्होंने हेल्थ कैंप लगाया था. This was one thing that happened. You know, hit and run case. I remember 1 o'clock in the night I was at मकरबा पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे मुझे बोल रहे थे मकरबा नहीं सरखेज लगेगा, सरखेज वाले बोल रहे थे मकरबा लगेगा. तो मैं दोनों के बीच में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न, और फिर मेरा दिमाग हट गया. मैंने कहा चल क्या रहा है, और हमने लाइव कर दिया. दूसरे दिन एवरी न्यूज़ चैनल, नेशनल, लोकल वाज कॉलिंग मी एंड दे सेड अर्चना क्या है. वी पुट इट अप इन 4 days गाइज. आई टुक दैट अप ऑन रेडियो इन 4 days. जिस बंदे ने हिट एंड रन किया था, ही वॉज बिहाइंड द बार्स. सो दिस इज द पावर ऑफ योर सोशल मीडिया प्लस योर रेडियो और वॉट एवर मीडियम दैट यू आर ऑन. आई थिंक नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब से पहली बार जब बना था, जो लोगों ने देखा नहीं था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कवर दैट. एंड आई रिमेंबर माई वीडियो केम बैक टू मी फ्रॉम 7 countries. सो यू नो इट वॉज सुपर वायरल. लोगों को पता नहीं था, एक्साइटमेंट इतना ज़बरदस्त था, मैंने सोचा भी नहीं था क्या होगा. अयोध्या जब आई थिंक पहली बार जब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो दिए जले थे, आई वॉज डूइंग लाइव फ्रॉम देयर एंड इट हिट 1 crore. So those many views and I was, you know, वहाँ बच्चे घर नहीं गए थे, वो कह रहे थे कि नहीं हम राम जी के लिए दिया जलाएंगे. और स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब सरयू नदी के किनारे वो दिए लगा रहे हैं. क्या भव्यता थी उस चीज़ की.
सो मैं वहाँ से लाइव कर रही थी, स्टैम्पीड सिचुएशन में हम लोग फंसे हुए थे. आप देखना अगर फेसबुक पे RJ अर्चना जानी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दीज आर द थिंग्स विच आर ग्रेट लर्निंग्स कि लोगों को रॉ देखना है यार. लोगों को नहीं, ये सब नहीं, अरे मैंने बाल सही से बना दिए, मैं बैठे, अरे नहीं बाल एक यहाँ से पानी से चिपका दिया और उसके बाद ना, पीपल वॉन्ट टू सी रॉ. झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, दे जस्ट वॉन्ट टू सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है, अगर उसके लायक चीज़ है तो. I think COVID times में I did one thing which was an experimental thing which was a big hit. I didn't know. I was making some healthy recipes with my mother in my छोटू सा kitchen, and those went viral. And people were like, वाह कितना अच्छा खाना बनाती हूँ. मैंने बोला आके चख ले एक बार. The recent one which became super viral was अहमदाबाद में एक flyover जो किसी के बंगलों में खुलता है. देखा आप लोग ने? हाँ, वो मैंने वायरल किया था. फिर उसके बाद EMC का फ़ोन भी आ गया कि मैडम शू करो તમે. मैं को તમે શું કરો છો? हाँ, so that was great. I think need of the hour, जो भी चीज़ है उसको आप करोगे वो चीज़ पक्का वायरल होनी है. और वायरल होने से ना हमेशा ये नहीं है कि अरे यार इतना पैसा बन जाएगा. That's the last thing. The first thing is you are in the right direction. And please don't forget, कि यार वायरल होने के चक्कर में चक्की पीसने के दिन आ जाए जो हम देख रहे हैं, है ना. सो आज मेरा मेन मोटिव ये था कि सर ने मुझे कहा था कि तुम्हारी जर्नी, मैंने कहा जर्नी तो सर ठीक ही है लेकिन ये जो है वो आपको वहाँ तक की जर्नी ना करनी पड़े, तो उसके लिए हम लोग अभी से सतर्क हो जाएं. सही कहा सर. आई थिंक आई एम डन विथ माई whatever that I had to share. But if there are any questions, anybody wants to know anything, I am making my videos, my content day in, day out, which is just helping me stay in the business. I know what is working, what is not. I guess I know. If there are any questions, yeah, please. Shout it out. Yeah. So I have recently started a podcast on YouTube where I talk, thank you so much, where I talk about my experience post-trauma. I'm a coma survivor, so post-trauma recovery it is. Okay, so I just want to talk about that particular thing, and I have a job on the side, so it's definitely not my main thing. I don't know how to grow it. It's like I've started it 3 months ago. It's at 300 followers now. I don't know how to grow it. That's brilliant. First of all, kudos to you. Let me know your channel name. I'll definitely, follow you and watch your content. That's great. Thank you so much. And आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है who have survived something and they are sharing. But don't stop at it. I think वो आपका एक beginning point है. But every single day अगर मैं आपको दाल चावल खिलाऊँ तो आप दाल चावल रोज़ खाओगे. ठीक है. So आपके पास ही आपका जवाब है. You need to figure out something else also, right? You are talking to an expert, you are talking about wellness, maybe you started that. Maybe that could be your genre, right? So why only stop at being a coma survivor, but look at it. Now she's doing all of these things. Maybe you are into fitness. Yeah? Thank you. So my main thing, why I want to do this is at that point of time, nobody really knows how to handle such a situation. Okay, doctors हैं, they're doing their part. But your family doesn't know. You don't know what's happening, right? So I want to reach out to more such people जिनकी इधर family में ऐसा कुछ incident है या फिर खुद भी prepared रहना चाहते हैं on how to handle it apart from the medical part, apart from the physical part. So I just want to do that. So I don't know how to move away from that. What's your good name? I'm Ishani. Okay, I'll tell you something. Yeah. मैं अपने आप के साथ ये टेस्ट करती हूँ. आप जो भी खाना बनाते हो ना पहले खुद टेस्ट करो कैसा है, खाओगे? हाँ. मैं हमेशा एडिट टेबल पे बैठती हूँ ना, उसके बाद मैं एडिट करने के बाद देखती हूँ. मेरा फर्स्ट वीडियो होता है 4 मिनट्स का और मेरा सेकंड वीडियो होता है 3 मिनट्स का. सो एडिटिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस विच इज़ वन गो, इट इज़ मल्टीपल. पहली बात. सो आप जो भी कुछ कर रहे हो पहले उसको री एडिट करो, उसको इफेक्टिव बनाओ. सेकेंडली, योर जर्नी बिगिन्स विद योर ओन पीपल. Have you made a broadcast of WhatsApp? Whoever that you know. If you're just sending, one video, which is effective, which is definitely going to be very, very helpful, nobody is going to ignore it.
दे विल से यार अगर किसी के साथ हो गया मेरे को नॉलेज ही मिल रहा है ना, सो मेरे को नॉलेज मिला, मैं तो स्प्रेड करूंगी. पता है हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, मर जाएगा वो. ठीक है. सो आई एम सेइंग कोमा, आपको पता है क्या होता है, व्हाट इज द साइंस. आई एम वन पेशेंट, आई हैव बीन थ्रू दिस, हियर्स माय जर्नी. And tuck, 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 when you're showing that, everybody is going to be, yeah, right? How many people are interested this way? How many people? Tell me. Yeah? So we'll all watch it, edit it, spread it to your own people, tell your own people, उनको हक से कह सकते हो यार भेजना, यार तेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजना. एंड वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी. यार बंदी आती है हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती है which is important. Let's spread the word, right? So you have your own answers, but I hope this helps. Yeah, definitely. Please tell me. Thank you. I just want to know what went behind building this charisma that you own. It's natural. नहीं नहीं मतलब मैं जो भी कुछ हूँ वो because of my family background. I belong to a Fauji background. मतलब my father is a retired army doctor. My brother and भाभी both of them they serve the Indian Air Force. और मुझे लगता है मुझे वहीं से वो डिसिप्लिन जो है वो मेरे खून में वहाँ से है. मैं एक भी दिन कोई मुझे बोलता नहीं है आप ये करो, लेकिन मैं अपनी खुद की बैंड बजा देती हूँ. पता है पूरे दिन में मैं इतना काम करती हूँ. द मोमेंट आई लीव दिस प्लेस आई विल बी अप विथ माई वर्क. एंड आई थिंक जितना आप अपने आप में डूबे रहोगे ना उतना आप ज़्यादा निखरोगे. और ये हम सब में है. आप जैसे दिखते हो, आपका जो प्रेजेंस है, एक बार आप कैमरा फेस करना शुरू करोगे, आप अपने आप को मिरर में देख के बात करोगे, आई एम श्योर आपके जो न्यूएंसेस, जो आपकी खूबियाँ हैं वो अपने आप ही चिल्ला चिल्ला के कहेंगी अरे यार ये क्या मस्त करते हो. लाइक पीपल से दैट आई डू वेरी गुड शायरीज. आई मीन द वे आई गिव आउट शायरीज, ओके, द वे आई गिव आउट स्टोरीज, इट इज़ ऑल फ्रॉम द हार्ट. वॉट एवर आई सेड राइट नाउ इज ऑल फ्रॉम द हार्ट, राइट. सो दिल से बोली हुई हर चीज़ बहुत सुंदर लगती है. That's it. But thank you. Thank you. Please. Ma'am, I also had Just a one question. second. He has been raising his hand for too long. One sec. Yeah, please. Okay, great. Go ahead. Ladies first. Okay, thank you. So you are always on the top of the trends, right? And you also talked about influencing. So ma'am, if you could give us tips on how to manage your wardrobe or like how to go on with the trends. Wardrobe? Yes. Wardrobe बहुत झोलपट्टी है बताऊँ आपको. आपके पास जितनी चीज़ें हैं ना उसका मस्त एक कॉम्बिनेशन कीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वही कपड़े घूम रहे हैं. ठीक है. आई एम सीरियस अबाउट इट. मैनी पीपल दे से अरे यार बहुत कपड़े हैं यार हर बार नए कपड़ों में. बट द थिंग इज यू स्मार्टली जस्ट डू इट. एंड वुमेन दे जस्ट नो इट. इन लोग के पास क्या है, ये सारे जो पुरुष बैठे हुए हैं इक्का दुक्का ऑप्शन क्या है इनके पास, ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट चढ़ा लेंगे. विथ वुमेन है ना, देखिए इनका चेहरा कितना बेचारा सा, क्या बोल रही हो यार. So with women I think we have so many options. एक स्टोल लगा लिया, अरे नया है क्या. Basically whatever that you have just mix and match that brilliantly. Like for example I'll tell you, ये जो मैंने पहना है अभी कोई सिर पैर ढंग वंग कुछ नहीं है, इसका उसके साथ सारा चीज़ें मैच हो गई. आई थिंक वो स्लोली आपको भी पता चलेगा. यू नो इट बेस्ट आप पे क्या अच्छा लगता है ना. कितनी महिलाएं जिनको यहाँ पे पता है कि मेरे पे क्या अच्छा लगता है बताइए, है ना. वी ऑल हैव फिगर्ड दैट आउट. सो मैं भी वही करती हूँ. या थैंक्स. प्लीज़ सर. हाँ प्लीज़. अब तो ये सीधा दौड़ के ही आ जाएंगे. प्लीज़. वो Absolutely. That's how it begins. And I think आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए. आप लोग जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा अगर कर रहे हैं आपको एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए. Wherever that you are, just go and spread the good word. कि मैंने ये चीज़ की है, ठीक है यार, मेरे को कोई मतलब नहीं व्यूज़ से, लोगों तक पहुँचाओ. When it begins like that, it will be a hit on its own. Don't bother. Please.
मैं बताऊँ एक बात, आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक दिन में कितनी बार देखना चाहोगे? नहीं मतलब आपके पास काम धंधा है, ठीक है? You're a busy guy, okay? You have a lot of responsibility. Now I'm asking you, how many times would you like to see your girlfriend? Because she's very demanding, okay? She requires you to just look at her, उसकी तारीफ करे, उसके लिए कुछ लेके आए, जितना करोगे उतना कम है, बताओ। हाँ, आप जवाब दीजिए, मुझे पता है इस आदमी के पास सच्चा जवाब है। इनके मुंह पे लिखा हुआ है एक बार, दैट्स द आंसर। हाँ, मतलब मैक्सिमम दिन में एक बार, ठीक है? ये मेरा पर्सनल व्हाटएवर दैट आई फाउंड, लाइक इफ़ यू हैव दिस टाइमिंग कि मैं इतने बजे सुबह में ये चीज़ करूँगा, मतलब मैंने ये मेरे जो रील है वो रखनी है, आप एक टाइम डिसाइड कर लो, देखो उस पर वर्क करेगा। आप चले जाओ अपने इनसाइट्स में, आपको पता चलेगा मैक्सिमम आपके कब आ रहे हैं, 9 बजे, 6 बजे, 3 बजे, आपको पता चलेगा। नहीं है उसको वापस से स्विच करो, आप शाम के 6 बजे डाल के देखो, आप सरप्राइज योर ऑडियंस, मे बी वहाँ पे व्यूज ज़्यादा आएंगे, फिर उसको पकड़ लो, बट दिन में एक बार आओ। बट सुनीता विलियम्स अगर लैंड कर रही हैं, एंड इट्स अ बिग थिंग, एंड यू टॉक अबाउट साइंस, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग वे यू आर सेइंग दैट ओ शी इज लॉस्ट दिस मच वेट, एंड यू नो 8 दिन के लिए गई हुई बंदी 8 महीने बाद आ रही है, हाँ चलना भूल चुकी है, सो इट्स अ बिग न्यूज़ ना। श्रीहरिकोटा से आप हो, वहाँ पे खड़े हो और वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, आपने अपना एक पोस्टिंग कर दिया है, ठीक है, पर लॉन्च हो रहा है तो डालो ना भाई, तुम सामने खड़े हो, ठीक है? आप अहमदाबाद में हो, आपको पता है आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, दिस इज द थर्ड इन द फाइनल मैच, पीपल आर रियली एक्साइटेड, सारी जगहें बंद है, लेट्स नॉट मेंशन कोल्ड प्ले, बट आप वहाँ पर से जा रहे हो तो आप करोगे ना यार, देखो पागलपन देखो यार, वो छापरावाड़ा घरनी अंदर भी ઊંઘી જવા માટે તૈયાર છે, 3-3 હજાર રૂપિયા આપે છે એ લોકોએ, હા તમને ખબર છે? છાપરાવાળા ઘરની અંદર 3-3 ને 5-5 હજાર રૂપિયા, સ્ટ્રોલીવાળી બેગ લઈ લઈને પેલા લોકો સ્ટેડિયમ જતા હતા, પેલા તગડી મૂક્યા, આ મૂકીને આए, राइट? सो दैट्स द मैडनेस, कुछ हो रहा है शहर में, आपको पता है, आप कवर कर सकते हो, करने के वास्ते मत करो। या इफ यू आर डूइंग इट डेली, मेक इट डेली। दिस इज फॉर इंस्टाग्राम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब, स्टार्ट विद once a week, and if you think that now people are, you know, watching it, you should make it twice a week. बट वो कैसा है कि आप कर पाओगे वो चीज़, बिकॉज इसमें एडिट, देखो सबसे पहली चीज़ होती है स्क्रिप्ट, क्या बोलना चाहते हैं भाई, मुंह खोल के बस लोग लग पड़ते हैं, ये देखिए इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई, इसके मुंह से क्या निकला, हर कोई बोल रहा है ना, तुम नया क्या दे रहे हो? सो डिसाइड योर स्क्रिप्ट, shoot yourself, editing, if there is a team, good, but will you be able to do this every day? You should be in love with your laptop, with your mobile, all of that, only then you can start this journey. नहीं तो मत करना, ज़बरदस्ती मत करना अपने साथ। कभी कभी ये लोगों को काला पानी की सज़ा जैसा लगता है, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। InShot, I use InShot only because I don't have the time. I have a radio show from 8 to 12, then I have meetings, then I have couple of, you know, events, I have my edit, I have to shoot, I have to script, so I don't have the time. So it's only InShot. I don't have a team. I have my team, like I mentioned. You're most welcome. Yes, please. First of all, you are a great speaker. Thank you. I'm honored. I have a lot of questions, but I will just keep it to 2. One of the question is कि आप जो बोल रहे हो कि बार बार मतलब एक मेंशन आ रहा है कि ऐसा कुछ मत करना कि चक्की भी इसने पड़ जाए या वो हो जाए, but do you agree with me or no? Just you can give me a short answer कि sometimes pushing the boundaries of a certain art form is also important, like Samay did to a comedy. Also there are people other doing it to other art forms. So do you think that influence, when you are influencing and when you are pushing the boundaries, of course there will be backlash when you are doing something new, sure, but it's important. Do you think that, or do you think कि भाई भले push boundaries ही push कर रहे हो पर वो भी एक लिमिट में करो आप, तो what is your take on it? You know, पशु और इंसान दोनों के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है,
and which is a filter. अगर आप वही फिल्टर नहीं लगा रहे हो तो फिर कौन लगाएगा, कौन बताएगा आपको? Pushing the limits is one thing, being edgy is one thing, but crossing the boundary is something. उसके बाद तो मतलब आपको पता ही है ना, आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी तो ट्रम्प छोड़ने आएगा आपको, ये वो वाली बात है. फिर तो कैद में बुलबुल है ना. Second question is, I am also into marketing. Soon we'll start on my content creation as I raise my hand. I have seen a lot of young folks being very excited about content creation or YouTube, और मतलब बच्चों से पूछता हूँ क्या बनना है तो यूट्यूबर बनना है, गेमर बनना है. So it's been talked about कि अपने एटलीस्ट घरों में तो मैं देख रहा हूँ ये चीज़ हो रही है. Do you think it's now a viable career to be a full-time content creator or YouTube creator and not go into the route of engineering or like traditional college do, मतलब college focus, पढ़ाई focus, rather than this is also a viable career for like young people like us? So do you think that कि 100% जैसे कि आप you are a radio jockey and a content creator, but someone who wants to be just a content creator, do you think they should do that, or do you think कि भाई नहीं, they should first do something of their own कि भाई safety net होना ज़रूरी है? What do you think that? मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए किसने बोला है कि अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ? अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, इन्फ्लुएंसर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ रेडियो इंडस्ट्री के बारे में. मैं जब से रेडियो कर रही हूँ ना, मैक्सिमम रेडियो जॉकीज हैव बीन इंजीनियर्स. मैं हमेशा मजाक में बोलती हूँ, साला इतना पढ़ाई करके तेरे को बनना था, ये तो इतनी पढ़ाई का है कि किसी की सीट खराब की तूने. वो पार्थ ओझा से मैं मिलती हूँ हमेशा, मैं हमेशा उसकी खिंचाई करती हूँ. पार्थ ओझा वी नो राइट, ही इज़ अ डियर फ्रेंड. आई ऑलवेज से भैया तुम मतलब यार डॉक्टर बनने की क्या आवश्यकता थी जब तुम्हें जीन्स में मिला ही हुआ है सिंगिंग, कोकनी सीट बगाड़ी थे तो. आई ऑलवेज टेल हिम दैट. सो आई एम सेइंग आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अब देखिए व्हाट्स योर कॉलिंग, इट विल कम टू यू. वी ऑल नो अबाउट द हिस्टोरिक स्टोरी ऑफ यूफोरिया, पलाश सेन. ही इज़ अ डॉक्टर बट एट द सेम टाइम ही इज़ गॉट अ ग्रेट बैंड. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अनगिनत. अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट है तो प्लीज़ उसमें डूब जाइए, फिर डोंट थिंक अबाउट. बट इफ़ यू थिंक दैट यू ऑल्सो कैन स्टडी, यू हैव अ गुड ब्रेन, यू हैव अ कॉलिंग टुवर्ड्स योर स्टडीज़, वाई नॉट? इन्फ्लुएंसर तो आप कभी भी बन सकते हो. और जहाँ तक इन्फ्लुएंसर जर्नी और ये सब छोड़ के आने का सवाल है, भैया AI बैठा हुआ है ना. सो लोग आजकल अपना वीडियो खुद ही क्रिएट करने लगे, AI ने बना दिया मेरा वीडियो. सो कितना क्या होने वाला है, दो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़. आई एम श्योर इट विल नेवर बी एबल टू डू व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. बी अवेयर गाइस. Yeah? Does it answer your question? In a way? Not really happy. Okay, I think we have got many curious questions, and she has answered them all perfectly. So, wishing you all a fulfilling and a productive day. I would like to thank you all on behalf of AMA here. Thank you once again. Thank you all. Thank you.